So in this lecture, we will discuss Itawa pilot project. See, right now we are discussing all the we have discussed in previous lectures different other projects, right? These projects are of Unit 2, as we all are studying. What? It's rural development programs. You know? We are studying Unit 2 rural development programs. In that, we have already discussed so many schemes, and now it's the time to discuss question number 6, and that is related to Itawa pilot project. So basically in this lecture what I'm trying to do that I'm just giving you a little bit of overview of these projects, and also the answer which is written here in front of you. I'm just trying to read it once, and then I will just try to I will explain it to you in a more easy manner, okay, so that you may get to know okay, what is actually the meaning of these lines, right? Other than that, what I will do is that I will try to highlight certain points which you need to mention in your exam. Okay, so this is what I'm doing here in this lecture, and this lecture will give you a feel as if you are listening this book in audio form, right? While and along with it, a little bit of explanation will also be there, right? So let us start with this question and the explanation. So here we are asked to describe Itawa pilot project. तो इटावा डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सबने सुना होगा, सिंस मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई फील इज़ यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ AKTU. तो अगर आप AKTU के स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली यू ऑल बिलोंग टू यूपी, एंड इटावा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन यूपी. So you might have heard about it, and most of you might have even seen it. Some of you might be belonging to this particular district, right? So इसी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही जो यूपी का है. इसमें हुआ क्या कि जो आइडिया है बेसिकली इस प्रोजेक्ट का, वो 1947 में आया था किसी के पास कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अब ये जो इंसान थे, द पर्सन हु एक्चुअली conceived this idea, he was Mr. Albert Mayer, right? He was lieutenant colonel of USA, and he came here in year 1944 with the whole with his whole force. पूरी अमेरिकन फोर्स इनके साथ आई थी इन ईयर 1944. और 1947 में इनके मन में ये विचार आया कि हम एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट लेके आते हैं. सो ये इनके मन में विचार आया, और उसके बाद इसको इन्होंने शुरुआत कब की इस प्रोजेक्ट की? इन ईयर 1948. So it has been written here. Just wait a minute. See what he has done. Okay. So we'll come to the question, this particular answer which is written here. But before that, I'd like to give you a background of this particular project. See, 1947 में ये विचार उनके मन में आया कि ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं. विच प्रोजेक्ट? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, है ना. Then he wanted to put this into action with headquarters at Mahiva village, about 17 miles from Itawa, UP, in September 1948. So he was actually having a control of this particular project from a place called Mahiva. महीवा एक विलेज हुआ करता था वहाँ पे, जो कि इटावा से 17 मील की दूरी पे था यूपी में. तो वहाँ से ये पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे थे, सुपरविजन कर रहे थे वहाँ से, ठीक है. इट वॉज एक्चुअली द हेड क्वार्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सितंबर 1948 में ये चीज़ इन्होंने एक्शन में लाई, और पहले 64 विलेजेस में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया. लेटर ऑन 97 विलेजेस इसके अंदर इंक्लूड कर लिए गए, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोजेक्ट you can say it just proceeded in this manner, in this particular manner. And the originator of this project was Lieutenant Colonel Mr. Albert Mayer of USA, राइट. तो इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने में किस किस का असिस्टेंस होगा? दो लोगों का. एक तो USA इन्वॉल्व है, USA सपोर्टिंग फाइनेंशियली बिकॉज पीपल ऑफ USA आर इन्वॉल्व्ड, राइट, and they are doing a little bit of research here
for the rural development. At the same time, since this particular district is of UP, so UP government is also involved, right? So here the assistance or the help or support that is being given by USA and the UP government. ठीक है, तो ये पूरा इटावा पायलट प्रोजेक्ट है. अब हम यहाँ पे जो चीज़ें मैंशनड हैं कि किसने शुरू किया था, कहाँ पर शुरू किया गया था, राइट. एट द सेम टाइम व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जब भी कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसके पीछे उनका कोई मकसद होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो चीज़ हम देखेंगे, राइट. देन एवरी स्कीम हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट माइट हैव बीन मेंशनड है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स कम टू द आंसर. तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है दैट इज द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1948. बिल्कुल ये आए थे 1944 में, आइडिया 1947 में आया था और इट वाज पुट इनटू एक्शन इन 1948, राइट. तो ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? 1948. मोस्ट प्रोबेबली ये वो पहला प्रोजेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो प्रोजेक्ट है दैट स्टार्टेड इन 1948, तो इटावा प्रोजेक्ट. इसके पहले जो हमने पढ़े वो 1947 से पहले के प्रोजेक्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे स्टार्ट किसने किया? मिस्टर अल्बर्ट मेयर ने. ये अमेरिका के थे, राइट. ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ अमेरिका. ओके, सो he came he was of USA. Just wait a minute, yeah, USA is written here. And he came with his American forces in year 1944 में आए थे, ठीक है. बट ध्यान रखना प्रोजेक्ट 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. 44 में ये आए थे. देन अगेन इनको भी समझने में थोड़ा टाइम लगा होगा कि क्या चीज़ है यहाँ पे. 1948 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है. नाउ he was the originator of this project at a village called Maheva in UP. यूपी में एक विलेज है. व्हाट्स द नेम ऑफ दैट विलेज? इट इज़ महेवा. यहाँ से महेवा विलेज मैंने आपको अभी बताया कि ये 17 माइल्स की दूरी पे था, 17 मील की दूरी पे था. कहाँ से? इटावा डिस्ट्रिक्ट से. इटावा जिसके नाम पे प्रोजेक्ट रखा. तो एक्चुअली में इटावा से 17 मील की दूरी पे ये शुरुआत की गई थी इस प्रोजेक्ट की. वहाँ पे एक विलेज है महेवा, ठीक है. वहाँ से the pilot project for development of Etawah district in UP was formulated by him with the following objectives. Etawah district के डेवलपमेंट के लिए जो ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया यूपी में, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे मेंशन्ड है. ये 4 ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ लिखे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट हियर सेज, अब उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम क्या थे, ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे. The first objective was to know the degree of productive and social improvements through self-confidence and cooperatives. So, see यहाँ पे वो स्टडी करें इस चीज़ की कि अगर लोग सेल्फ के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए और वो ग्रुप में वर्क करना शुरू करें इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो उस केस में क्या इम्प्रूवमेंट होगा इन डिग्री ऑफ प्रोडक्शन, क्या सोशल इम्प्रूवमेंट्स होंगे. इन चीज़ों को जानना इनका मकसद था, है ना. तो ये क्या करने वाले थे? ये विलेजर्स में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहते थे, ये कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहते थे और फिर देखना चाहते थे कि इन दोनों चीज़ों की हेल्प से क्या प्रोडक्शन लेवल पे में इम्प्रूवमेंट हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एंड सोशल लेवल में क्या इम्प्रूवमेंट्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. तो द फर्स्ट एम यू गेट टू नो, इनके प्रोजेक्ट का एम ये था, ठीक है. इस स्टडी के लिए बेसिकली यहाँ इंडिया में आए थे. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइंड हाउ क्विकली दिस रिजल्ट्स कुड बी अटेन्ड. अब जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कितने टाइम में ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स अटेन किए जा सकते हैं. कि अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जब हम जो प्रेजेंट कंडीशन में विलेजर्स रह रहे हैं, जब उनके अंदर हम कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट व्हेन वी विल इंट्रोड्यूस दीज थिंग्स टू देम, तो उसके बाद उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो इम्प्रूवमेंट्स कितने टाइम पीरियड के बाद अटेन किए जाएंगे, ये भी इस प्रोजेक्ट में देखना था, राइट. The third point is to know whether the results remain permanent even after the special pressure is withdrawn. तीसरा जो वो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये जानना था कि ये जो रिजल्ट्स आए, मीन्स जो डेवलपमेंट हुए, जो इम्प्रूवमेंट हुए, वो क्या परमानेंट
हुए हैं या फिर दे आर टेम्परेरी चेंजेस। क्योंकि ये जो चेंजेस लेकर आए जाएंगे, ये बेसिकली कैसे लेकर आएंगे, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं विच वी टॉक्ड अबाउट कि इम्प्रूवमेंट्स होंगे, वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस प्रोजेक्ट में लेकर आई जाएगी। लोग खुद से ही तो नहीं करना शुरू कर देंगे। तो वो जो चीज़ की जा रही है दैट इज़ डन फोर्सफुली, है ना, वो प्रेशर में आके लोग करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इनिशियली एट इनिशियल स्टेज। बाद में तो वो उनके खुद के बन जाते हैं थॉट्स, राइट। बट यहाँ पे वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो स्पेशल प्रेशर जो ऑफिशियली यहाँ पे लोगों पे प्रेजेंट होगा, वो जब विड्रॉ कर लिया जाएगा, जब वहाँ से वो मशीनरी हटा ली जाएगी, तो भी क्या वो इम्प्रूवमेंट्स प्रिवेल करेंगे? मीन्स क्या वो चेंजेस परमानेंट होंगे? वो जो प्रोडक्शन बढ़ा है एग्रीकल्चर में, क्या वो परमानेंटली बढ़ेगा? या फिर जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वहाँ नहीं रहेगी तो अगेन प्रोडक्शन विल गो टू द प्रीवियस लेवल? ये चीज़ उन्हें चेक करनी थी, राइट। द फोर्थ स्टेटमेंट सेज to assess how far the results were reproductive in other places. अब फोर्थ पॉइंट ये है कि जिस प्लेस पे शुरुआत की गई लाइक इटावा, उसके अलावा जो दूसरे प्लेसेस हैं वहाँ पे ये किस तरीके से रिजल्ट देता है। क्या एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही वो फ्रूटफुल हुआ है, या फिर इन जनरल इफ़ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड इन एनी ऑफ द रीजन्स, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से अपने इन कॉन्सेप्ट्स को देखने आए थे कि जो उनके कॉन्सेप्ट है या उनका जो वे ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो तरीका कहाँ तक कारगर है, वो चीज़ यहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि कितना फ्रूटफुल होगा, देन कितने टाइम में अटेन होंगी इनके ऑब्जेक्टिव्स, देन वो परमानेंट चेंजेस होंगे या नहीं, और वो उसी पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके से बिहेव हो रहा है या फिर इन अदर रीजन्स ऑल्सो द सेम आउटपुट विल बी सीन। तो ये चीज़ें यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे एज एन ऑब्जेक्टिव दीज थिंग्स हैव बीन मैंशनड, है ना। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। The fourth point says in the project, development officers at various levels were posted. अभी हम देख रहे थे ना कि under pressure they will perform these tasks. किसके प्रेशर में? तो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा है एट वेरियस लेवल्स, है ना, डिफरेंट विलेज लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस तरह डिफरेंट लेवल्स पे दे हैव अपॉइंटेड वेरियस डेवलपमेंट ऑफिसर्स। एट विलेज लेवल पॉइंट फिफ्थ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। एट द सेम टाइम लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट। एट विलेज लेवल देयर वॉज अ मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर विथ 4 or 5 विलेजेस अंडर हिम। अगर हम गांव के स्तर की बात करें ना, विलेज लेवल की बात करें, तो वहाँ पर विलेज लेवल वर्कर्स का अपॉइंट किया जाता था, राइट। दिस विलेज लेवल वर्कर्स दे वर मल्टीपर्पज, है ना। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का टास्क परफॉर्म करेंगे, उनको कुछ भी टास्क दे दिए जाते थे, ठीक है, मल्टीपर्पज़ थे। लाइक कभी उनको सुपरविजन का टास्क दे देते होंगे, कभी उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का टास्क देते होंगे। सो लाइक दिस फॉर डिफरेंट वर्क्स, है ना, दे वर गिवन। Sometimes they may be clerical in nature, sometimes those works may be administrative in nature. Means they were appointed for multi-purpose in the village. विलेजेस, और हर एक विलेज लेवल वर्कर के अंडर में 4 से 5 विलेज होते थे, ठीक है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं। दिस प्रोग्राम वर्क्स वर बाय एंड लार्ज सिमिलर टू अर्लियर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी वर्क हो रहे हैं, राइट, वो मोर और लेस बाय एंड लार्ज वो अर्लियर प्रोजेक्ट्स की तरह ही हैं। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें कंडक्ट कराई जा रही हैं ना, बिकॉज अल्टीमेटली वो एनालाइज करना चाहते हैं कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट कितना हुआ, परमानेंट हुआ या नहीं, कितने टाइम पीरियड में हुआ, ये सारी चीज़ उन्हें देखनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें करनी है तो व्हाट वर्क्स दे वुड हैव डन, डेवलपमेंट करना है तो कुछ चीज़ों पे फोकस किया होगा, है ना, कुछ वर्क्स शुरुआत की गई होंगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो वो काम क्या है? तो वो काम वैसे ही हैं जैसे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में हमने देखा। तो सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट करना होगा रूरल एरिया में, एज आई ऑलरेडी सेट। ऑलवेज आई जस्ट से दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो आपको एग्रीकल्चर को डेवलप करना ही होगा
इफ़ वी आर टॉकिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट, है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स, सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। देन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, soil conservation, improved cultural practices and the like. See how nicely they have mentioned. ये वो सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आज की डेट में भी कोई आपसे कहे कि आपको अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप यही स्टेप्स लोगे। आप जो सीड यूज़ कर रहे हो वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी की लोगे, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ करोगे। देन आप इम्प्लीमेंट्स या टूल्स जो यूज़ कर रहे हो वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, राइट। यूड हैव सीन, पहले हम हल का यूज़ करते थे, अब हमारे पास ट्रैक्टर्स हुए, अब और ज़्यादा एडवांस्ड आ गए हैं। वी यूज़ सम कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर्स जो कि देख लेते हैं कहाँ पे लेवल है फील्ड या नहीं, है ना, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम किया गया है। ऑल दिस थिंग इज़ सीन इन कंप्यूटराइज्ड मैनर, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है और बहुत ईजिली हो जाता है और टाइम भी कम लगता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव डेवलप डिफरेंट इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स। सिमिलरली आपको प्लांट को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स पता होने चाहिए, राइट, बिकॉज पेस्ट अटैक्स हो रहे हैं, कभी इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, सो यू शुड नो दैट हाउ टू प्रोटेक्ट दोज प्लांट। देन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होगा, राइट, जो आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। दे आर गुड कॉमर्शियल सोर्स ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। देन सॉइल कंजर्वेशन की बात की जा रही है कि सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। इम्प्रूव्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जो भी तरीके हम कल्चर करने के लिए इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं वो सारे प्रैक्टिसेस हमें इम्प्रूव करनी होंगी। तो वही सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर भी की जा रही थी, राइट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डेवलप द एग्रीकल्चर प्रोसेस। सेवन्थ पॉइंट जो है दैट इज सेइंग देयर वर प्रोजेक्ट्स इन एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेशन, क्रेडिट प्रोविजन, मार्केटिंग एंड सप्लाई, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एट्सेट्रा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने और क्या चीज़ों पे फोकस किया, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन पे, कोऑपरेशन, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सो वी वॉन्ट डिफरेंट पीपल टू कम टुगेदर एंड कोऑपरेट विद ईच अदर, राइट। तो कोऑपरेशन पे हमने फोकस किया। वी फोकस्ड ऑन क्रेडिट प्रोविजन, हर चीज़ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी, सो हाउ टू मेक दैट मनी अवेलेबल टू द विलेजर्स। उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, उनको सारी चीज़ें अवेलेबल करानी है, ठीक है। तो क्रेडिट प्रोविजन का वे टॉक्ड, है ना, हमें मनी चाहिए। अब कोई भी चीज़ जब भी हमें करनी है तो फिर हाँ फाइन, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट मनी, तो क्रेडिट प्रोविजन की हम बात कर रहे थे। सो ऑब्वियसली ऑल नो कि मनी की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी टास्क करने में, तो फार्मर्स को या विलेज पीपल को वो मनी सप्लाई हो पाए थ्रू सम बैंक्स और लाइक फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो चीज़ यहाँ पे इंश्योर की गई। सो क्रेडिट प्रोविजंस पे बात की गई। देन मार्केटिंग एंड सप्लाई, अब चीज़ प्रोड्यूस तो होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हो गया, बट वी नीड टू सेल दैट प्रोड्यूस, है ना, हमें उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको सप्लाई करना है कंज्यूमर्स तक, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके फार्मर्स, है ना। सो उन ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा बिकॉज दे आर पैरिशेबल गुड्स, है ना, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर पैरिशेबल इन नेचर, वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, दे वी कैन नॉट स्टोर इट परमानेंटली, बट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कैसे उसको स्टोर करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें ताकि वो मार्केट में पहुँचे टाइमली, तो ये चीज़ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर देखी गई। देन इम्प्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स, अगेन ट्रांसपोर्ट करना है इन चीज़ों को, तो रोड्स का इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि चीज़ें टाइमली डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें जहाँ पे उनकी डिमांड है, राइट। वाटर सप्लाई इंश्योर करना, बिल्कुल इरीगेशन प्रॉपर होना चाहिए फॉर गुड प्रोडक्शन, सो वाटर सप्लाई वॉज इंश्योर्ड। then drinking water supply should be there for the overall development of the rural people, right, drainage should be well maintained, तो sanitation पे भी focus किया गया। ultimately the goal of the this particular project is overall development of the rural people, तो agriculture पे focus कर रहे हैं, और भी सारे जो एरिया ऑफ अर्निंग हो सकते हैं उन सब पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। देन चीज़ों को ईजी किया जा रहा है और इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं इन डिफरेंट एरियाज। 8 पॉइंट क्या है, देयर वर अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, टूर फॉर फार्मर्स,
विलेज लीडर ट्रेनिंग कैंप्स, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। अब यहाँ पे लोगों को अवेयर करने की बात की जा रही है ना। देन जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं ऑफ द सोसाइटी, और एडल्ट्स, उनके लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम सम टूर आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर फार्मर्स। विलेज के लोगों को खुद अपने लिए काम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। सो सम विलेज लीडर्स आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ट्रेनिंग कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था, एंड अलॉन्ग विद डैट सम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स वर हेल्ड। मतलब लोगों को एक साथ कलेक्ट करके सम शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज डाइसेमिनेटेड टू दोज पीपल इन ग्रुप, है ना। तो वो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स वहाँ पे शुरू किए जाते थे। बिकॉज वेन यू आर स्टार्टिंग सम प्रोग्राम, तो आपको उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है दैट यू नीड टू प्रॉपरली कम्युनिकेट टू द पीपल, ताकि आपके काम अच्छे से हो सके। तो उसके लिए जो तरीका बेस्ट लगता था उन लोगों को, दैट वाज टू ऑर्गेनाइज सर्टेन मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। एक असेंबली टाइप की ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है। The ninth point is, initially the work was started in 64 village. I already told you in the beginning कि वर्क पहले 64 villages में स्टार्ट किया गया. आफ्टर 1 year the number of villages covered by the project went up to 97. मतलब ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है ना. These people are trying to इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ 64 विलेजेस तक ही सीमित नहीं करना है, उसको और बढ़ाना है. ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस को इसका बेनिफिट मिलना है, ठीक है. सो फॉर दैट दिस प्रोजेक्ट वॉज, और इसके अलावा इनका एक गोल भी था टू स्टडी कि वो उसी रीज़न के लिए एप्लीकेबल हुआ है इनका जो वर्क है, या फिर दूसरे एरियाज़ पे भी सिमिलर वे में प्रोग्रेस शो की जा रही है. तो इस रीज़न से भी इन्होंने और ज़्यादा नंबर ऑफ़ विलेजेस को इंक्लूड किया, राइट. तो वो एक साल के अंदर बढ़ के 97 हो गया. इन 1951 अनदर 125 विलेजेस वर इंक्लूडेड. सी द ग्रोथ. 97 के बाद 97 विलेजेस इंक्लूड होने के बाद इन 1951 125 विलेजेस. स्टार्ट कब हुआ था ये प्रोग्राम? 1948 में. इटावा पायलट प्रोजेक्ट, है ना. एक साल बाद मतलब 1949 में इसमें 97 हो गया. और फिर 2 साल बाद, उसके अगले 2 साल बाद, इन 1951 125 विलेजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिए गए, ठीक है. 10th पॉइंट पे आते हैं. द प्रोजेक्ट वॉज फाइनली मर्ज्ड विद द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लॉक. अब एक दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें इस प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया, ठीक है. सो द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम शुरू किया, और उसमें ये जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है उसी के अंदर मर्ज हो गया. बिकॉज अगेन द ऑब्जेक्टिव वो माइट हैव बीन सिमिलर, है ना. ऑब्जेक्टिव और मोर और लेस सेम होते हैं, तो चीज़ों को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. जब टारगेट सेम है तो उसको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वी ट्राई टू कवर इट. The most convincing achievement of this project was in agriculture, particularly in wheat production, due to adoption of improved production technologies. See, सबसे biggest achievement जो इस project का था, that was in the field of agriculture. जब इतनी सारी agriculture advancements पे फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चरल चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, तो ये चीज़ तो होना स्वाभाविक थी, ठीक है. वीट प्रोडक्शन बढ़ गया ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है. अच्छी अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया गया, और गेहूं का जो उत्पादन था उसको बढ़ाया गया. और ये इस प्रोजेक्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. इट वॉज अ कन्विंसिंग अचीवमेंट, जो कि अच्छी अचीवमेंट थी, ठीक है. 12th पॉइंट सेज, अब हम 12th पॉइंट पे आ गए हैं. दिस प्रोजेक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट्स. इस प्रोजेक्ट के अंदर जब डिफरेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए गए, देन अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक रोड्स को इम्प्रूव करना, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें कैसे इंश्योर होंगी. कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क होंगे, तो वहाँ पे लोगों को के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई. तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेरोजगारी की, ये अल्प रोजगार लोगों के पास होता है, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं अवेलेबल होता है. तो ये जो दोनों इश्यूज प्रिवेल कर रहे थे रूरल एरियाज़ में, उनका सॉल्यूशन भी इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली लोगों को मिला, राइट. बिकॉज हम डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को करने के लिए वी नीड सम मैन पावर. तो जब कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता ही मिलता है. इफ़ यू आर
encouraging the people of that area to take initiative. तो वो इन्वॉल्व होंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी if the government is ready to pay them, है ना. So this was a good initiative, and this was one of the problems which was solved by this particular project. 13 pointers. Now let's come to the 13th point. The success gained in Etawah could not be maintained after mayor's departure in 1957. मतलब ये परमानेंट नेचर का नहीं था सक्सेस. जो सक्सेस इटावा डिस्ट्रिक्ट को मिली वो मेयर जो थे, जो यहाँ पर आए थे लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रॉम यूएसए, उनके जाने के बाद जब वो 1957 में चले गए तो उसके बाद द सक्सेस वाज नॉट मेंटेन्ड, राइट. मतलब फिर उस तरीके से प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, उस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई. अंडर प्रेशर तो प्रोग्राम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वाज सुपरवाइजिंग ऑल दिस प्रोग्राम, जब वो यहाँ से चले गए द प्रोग्राम was slowed down and the success which is gained was not maintained, right. So that was all about this particular Etawah project program. I hope I made you understand whatever is written here, and if there is any doubt you may ask in the comment section. Thank you and have a nice day.